So in last class, we studied about the international marketing. What are the various constraints and what are the barriers in international marketing, and what are the push and pull factors, and what are the advantages of entering in the international marketing. We studied about all these things. Lovely. Tell me, what are the various disadvantages, or we can say what are the various constraints in entering in the international market? What are the various barriers? क्या क्या ऐसे barriers हैं जो international market में हमें जाने में उसमें problem होता है, entry करने में problem होता है? What are the various basically reasons? What are the various reasons? क्या क्या है इसके? Political and legal difference, cultural difference, economic difference, differences in currency unit, differences in the language, marketing infrastructure, trade restriction, high cost distance, difference in trade practices. Okay, so these are the various factors of the basically entering in the international market or marketing problem in the international market. What are the push and pull factor? Who is going to tell me about it? Push and pull factor क्या होता है international market में? What are push and pull factors? Sunny? जहाँ अपॉर्चुनिटी रहेगा वहाँ पुल फैक्टर लगेगा और क्या. Very good. Like in international market, if any country is thinking that they will get the opportunity in another country, that will become the pull factor. Like that is the opportunity. जब हम opportunity देखकर दूसरे company में market में enter होते हैं दूसरे country में. But in the case when there is a pull factor, when any company is facing problem in dealing in the domestic market, then they want to move toward the next international market or foreign market. What are the various advantages of international marketing? Who is going to tell me about what are the various advantages? क्या क्या फायदे हैं international market के? Advantage, growth opportunity, domestic market constraint. Advantage, growth opportunity, domestic market constraint, where competition, government policies and regulation, monopoly power, short analysis. So now we are going to do one important thing, that what is the SWOT analysis when we are entering in the new market with the new product. Like normally आज हम SWOT analysis से start करेंगे topic. We already completed the 3 topics in this chapter. तो इस chapter में इस जो topic है SWOT analysis है, strength, weakness, opportunity and threat. ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली कि जब आप मार्केट में एंटर होते हैं, जब आप कोई प्रोडक्ट में जो आपकी प्रोडक्ट है उसमें चेंजेस लाके जब आप मार्केट में एंटर होते हैं, या फिर आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, तो वो कितना बेनिफिशियल है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या थ्रेट है और उससे हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी. ठीक है, so in this SWOT analysis we are going to think about that the company may restructure, जो company may be restructure करे, change ला सकता है in the production and marketing design for their products. and production में कुछ marketing design वगैरह में change लाएगा, किसमें? products में. और वो एक्सप्लोर करेगा कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी को और स्ट्रेंथ को इन प्रोडक्ट मार्केट, यानी कि वो एक्सप्लोर करेगा इसको इंटरनेशनल मार्केट में इस प्रोडक्ट को. ठीक है, तो ऐसे केस में SWOT एनालिसिस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? सबसे पहला स्ट्रेंथ. अगर आप कोई नए प्रोडक्ट के साथ एंटर होते हो मार्केट में, तो प्रोडक्ट को क्या मिलेगी? पहचान मिलेगी, प्रोडक्ट को रिकॉग्निशन मिलेगी, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में लोग जानेंगे. ठीक है, सेकेंड है लॉन्ग स्टैंडिंग इमेज इन द मार्केट. अगर मार्केट में ऑलरेडी उस टाइप का कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में आपके प्रोडक्ट का इमेज जो है वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगा? लोगों के दिमाग में रहेगा. लाइक दूस प्रोडक्ट आर गोइंग टू मेक पोजिशनिंग. उस तरीके के जो प्रोडक्ट है वो क्या बनाएंगे? पोजिशनिंग करेंगे कंज्यूमर के माइंड में. तो एक तरीके से पहला तो ये होगा कि भाई प्रोडक्ट को लोग जानेंगे, लाइक प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन रिकॉग्निशन होगा, ठीक है, पहचानेंगे. सेकेंड चीज है कि द इमेज होगा बेसिकली आपके प्रोडक्ट का मार्केट में वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा. थर्ड क्या है कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सप्लाई और क्वालिटी वगैरह से सेम कंसिस्टेंसी रहेगी. ठीक है,
नेक्स्ट है कि इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिलेगा अगर प्रोडक्ट आपका न्यू है तो, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग MIS वगैरह का बेनिफिट उठा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर MIS क्या है, MIS क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MIS? मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, और आपके जो कंज्यूमर अवेयरनेस सिस्टम का आपको बेनिफिट मिलेगा। बट वीकनेस क्या हो जाएगी, वीकनेस क्या क्या होगी कि लाइक शॉर्ट, अगर कोई नया सेम कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट लेकर आ जाता है तो उस केस में शॉर्ट स्पैन हो सकता है, ठीक है। ज्यादा प्रोडक्ट का रिकॉग्निशन होगा तो लोग ज्यादा कॉम्पिटिटर कोशिश करेंगे सेम प्रोडक्ट के साथ एंटर होने का। प्राइसिंग जो है कई बार मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। और आपका रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि आप नए प्रोडक्ट बना रहे हो, आप नया चेंज ला रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर इनकरिंग ए हाई कॉस्ट, तो रिस्क विल बी इंक्रीज, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करके मार्केट में एंटर नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी का भी सामना करना पड़े। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अगर हम नया कोई मार्केट में नया कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है कि कॉम्पिटिटर्स विल टेक टाइम टू एंट्री विद द सेम प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आपको वीक कंपटीशन होगा, तब तक आप स्ट्रांगली अगर मार्केट शेयर को कंक्वायर कर लोगे तो दैट इज गोइंग टू गिव द बेनिफिट इन द फ्यूचर। नेक्स्ट है कि अनइंटरप्टेड एंट्री, मतलब इस तरीके के प्रोडक्ट का कोई बेसिकली मैच नहीं है तो आप इजिली एंटर कर सकते हो दूसरे मार्केट में, ठीक है। आपके कंज्यूमर्स का डिमांड हो सकता है, बहुत कम सब्स्टिट्यूट्स होंगे या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स अवेलेबल होगा, बहुत कम सब्स्टिट्यूट्स होंगे या तो उस तरीके का एक आध कोई प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, ठीक है। आप MIS का, कंज्यूमर अवेयरनेस सिस्टम का या फिर और भी सॉफ्टवेयर की हेल्प को लेकर के आप मार्केट को इजिली एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप हाई डेंसिटी वाले एरियाज या हाई पॉपुलेशन वाले एरियाज या फिर कंट्री में एंटर करते हो तो यू विल गेट द बेटर कंज्यूमर बेस। थ्रेट क्या है, अब थ्रेट क्या चीजें हैं, जैसे कि नेक टू नेक कंपटीशन, यानी कि हो सकता है कि अगर कंपनीज अगर एंटर हो जाए इस तरीके के प्रोडक्ट को लेकर के तो कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और हो सकता है कि जब वो एंटर करे, जब एक कोई पर्टिकुलर ABC कंपनी है वो एंटर करे तो उसी समय कोई XYZ कंपनी भी साथ में सेम प्रोडक्ट के साथ एंटर कर जाए, तो ये इस तरीके की चीजों की पॉसिबिलिटी है। सेकेंड है फैशन एडवर्टीजमेंट वगैरह, मतलब कि यहाँ पर जो बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं, फैशन एडवर्टीजमेंट का मतलब है कि आप फैशन वाले प्रोडक्ट्स वगैरह के जो एडवर्टीजमेंट वगैरह है या फिर जो चेंजेस हो रहे हैं डे टू डे फैशन टेस्ट में पीपल के, दैट इज आल्सो बिकम अ थ्रेट फॉर द प्रोडक्ट। और मे बी फ्रीक्वेंट शिफ्ट इन डिमांड का मतलब है कि कस्टमर, इफ द कस्टमर विल गेट द सो मेनी अल्टरनेटिव देन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर इज गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर, सो यहाँ पर शिफ्टिंग की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज यू आर मेकिंग द कस्टमर बेस एंड मार्केट, एक मार्केट को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहां पर रिसर्च एंड R&D कर रहे हैं, तो वहां पर आपका हाई कॉस्ट ऑब्वियसली मार्केटिंग में लगेगा, ठीक है। और पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल थ्रेट इज ऑल्सो अवेलेबल। So when we are dealing with the new product development and when we are entering in the new foreign market, so these kinds of things we have to do the SWOT analysis, that what kind of benefits and what kinds of we can say what kind of benefits or advantages and disadvantages are present in the foreign market. So this is the SWOT analysis. Clear हो गया SWOT analysis क्या है? Lovely and Sunny, Lovely and Sunny, clear हो गया? Okay. Next is international orientation, which we already completed, जो हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था, इंटरनेशनल ओरिएंटेशन। इसको हम कहते हैं EPRG फ्रेमवर्क। EPRG का मतलब क्या है? एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजनोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिज्म, ठीक है। तो इनको इथनोसेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म, रीजनोसेंट्रिज्म, जियोसेंट्रिज्म, ठीक है, ये भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसका एक एक और नाम है जिसको शॉर्टकट में आप लर्न कर सकते हैं। जैसे इथनोसेंट्रिज्म जो होता है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द होम कंट्री ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर ये होम कंट्री ओरिएंटेशन है इथनोसेंट्रिज्म। पॉलीसेंट्रिज्म की अगर हम बात करें या पॉलीसेंट्रिक की अगर हम बात करें तो दैट इज होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन, ठीक है। थर्ड इज रीजनोसेंट्रिज्म, जहां पर हम रीजनोसेंट्रिक या फिर रीजनल ओरिएंटेशन कहते हैं।
और जियोसेंट्रिज्म इज समथिंग विच वी आर से ग्लोबल ओरिएंटेशन और वर्ल्ड ओरिएंटेशन। तो इसका एक एक और नाम है। अब यहाँ पर हम एक एक करके इसको अच्छे से समझते हैं। Okay, so we just need to move toward the EPRG orientation. EPRG framework की तरफ हम move करते हैं। तो सबसे पहला जो EPRG framework में जो सबसे first जो stage है वो क्या है, इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन या फिर इथनोसेंट्रिज्म की बात कर रहे हैं। इथनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कंपनी है ना वो अडॉप्ट या वर्क करेगी सिर्फ ये मानकर कि भाई हमारा जो होम कंट्री है दैट इज द सुपीरियर वन, ठीक है। और वो अपनी होम कंट्री में जैसा भी प्रोडक्ट बनाएगी they are going to deal with the same product in the foreign market as well. They are not going to change the product, they are not going to change the quality, but what they can do, they can only sell the product in the same way whatever they are making in the home country. यानी यहाँ पर जो प्रेफरेंस और प्रायोरिटी होगी इथनोसेंट्रिज्म ओरिएंटेशन में कि भाई अगर कोई भी कंपनी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हल्दीराम हो गया, एग्जाम्पल के लिए अमूल हो गया, whatever they are making they are not going to change when they are dealing in the foreign market. मतलब वो अपने फॉरेन मार्केट में कुछ भी डील करते हैं तो वो प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, बिकॉज व्हाट दे आर थिंकिंग कि हम लोग जो बना रहे हैं, जैसा बना रहे हैं, ये हम लोगों की आइडेंटिटी है एंड वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द फॉरेन टेस्ट। मतलब फॉरेन में लोग उसको लाइक करें, एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट होता है इनका कि ये बेसिकली पहले एनालाइज कर लेते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का डिमांड कहाँ होगा और उस हिसाब से ये क्या करते हैं प्रोडक्ट में डील करते हैं। और लेकिन यहाँ सुपरियोरिटी किसको देते हैं या प्रायोरिटी किसको देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने होम कंट्री को, ठीक है। यहाँ पर ये जो कंपनीज होते हैं ये हार्डली कोई अडेप्ट करेंगे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स न्यू प्रोडक्ट या फिर कह सकते हैं टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू मार्केट, यानी फॉरेन मार्केट या न्यू मार्केट के टेस्ट के हिसाब से दे आर नॉट गोइंग टू अडेप्ट और चेंज एनीथिंग इन देयर प्रोडक्ट, ठीक है। वॉट एवर दे आर मेकिंग दे आर गोइंग टू कैटर द सेम थिंग टू द फॉरेन मार्केट। इनका जो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं जो इथनोसेंट्रिज्म को अडॉप्ट करती हैं, वो क्या करती हैं, उनका सारा का सारा जो इम्पोर्टेंस होता है वो हेड ऑफिस को मिला होता है और सारा का सारा पॉलिसीज राइट भी किसके पास होता है, हेड ऑफिस के पास। दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ द सब्सिडियरीज कि आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चेंज करके डील कर ले, नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ दिस टू द सब्सिडियरीज। तो यहाँ पर जो हेड ऑफिस है जो उसने उसी को इम्पोर्टेंस मिला होता है ओवरसीज सब्सिडियरीज के अलावा, यानी ओवरसीज सब्सिडियरीज को छोड़ दीजिए, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, सारा इंपॉर्टेंस किसको मिलता है, हेड ऑफिस को। कोई भी चेंजेस लाना है तो हेड ऑफिस ही डिसाइड करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस कैन मेक, ठीक है। और ये जो है कंपनीज जो है ये पोटेंट अपॉर्चुनिटीज और कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज को बेसिकली अवॉइड करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी होम कंट्री और डोमेस्टिक होम कंट्री को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये होता है इथनोसेंट्रिक। अब इथनोसेंट्रिक की अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो व्हाट आर द बेसिकली मेरिट्स क्या होगा इथनोसेंट्रिक का, बेसिकली कह सकते हैं इथनोसेंट्रिक में एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि कौन कौन ऐसी कंपनीज है। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं निशान, निशान कार है ना, NISSAN, निशान, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, इथनोसेंट्रिक में क्या हुआ था कि जो इथनोसेंट्रिक अप्रोच है निशान का वो कुछ सालों में विजिबल हुआ इनिशियल ईयर्स में कि जो कार और ट्रक वगैरह जो एक्सपोर्ट हो रहे थे टू द USA वर डिफिकल्ट टू स्टार्ट ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर मंथ्स, मतलब कोल्ड विंटर मंथ्स में बहुत मुश्किल होता था उनको शुरू करना। इन जापान द कार ओनर्स would cover their cars with hoods or blanket during winters and expected American to do the same. यानी कि basically they didn't change the criteria when they are exporting the goods in the USA, or what they are just expecting कि whatever the Japanese are doing for protecting the car in the winter season, same thing they are basically expecting कि same thing will be followed by USA as well. So they are not going to change the criteria or they are not changing their product before selling it in the USA market. The example is Nishan. We can also see the example of Amul and Haldiram as well. ठीक है। नेक्स्ट जो आपका बेसिकली जो आपका ओरिएंटेशन है, नेक्स्ट ओरिएंटेशन कौन सा है, नेक्स्ट ओरिएंटेशन सनी, which one is the next orientation? Polycentric. Exactly.
तो नेक्स्ट वाला जो है दैट इज पॉलीसेंट्रिक या पॉलीसेंट्रिज्म जो ओरिएंटेशन है, इसमें कंपनी जो है ना, इसमें कोई भी कंपनी है, मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, एक मिनट, लेट मी शेयर इट। जैसे इन एथनोसेंट्रिक में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ होम कंट्री पे ध्यान दिया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिमिलैरिटी थी कि जो भी आप बेसिकली बना रहे हैं अपने होम कंट्री में, यू आर गोइंग टू सेल द सेम प्रोडक्ट। बट इन पॉलीसेंट्रिक यहाँ पर हमारा जो ध्यान होगा पूरा का पूरा होस्ट कंट्री पे होगा, यानी कि वी आर गोइंग टू बेसिकली कंसर्न टुवर्ड द होस्ट कंट्रीज, या फिर कह सकते हैं जिस कंट्री को बेसिकली हम सर्व कर रहे हैं प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारा जो ध्यान होगा वो डिफरेंसेस पे होगा कि बेसिकली डिमांड क्या है हर पर्टिकुलर मार्केट का, यानी अलग अलग मार्केट का अगर अलग अलग डिमांड है तो वी आर गोइंग टू सर्व द डिफरेंट प्रोडक्ट टू द डिफरेंट मार्केट। तो यहाँ पर पॉलीसेंट्रिक का जो कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज टोटली बेस्ड ऑन दैट व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस आर देयर इन द इंटरनेशनल मार्केट, वी आर गोइंग टू फुलफिल द डिमांड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सिमिलैरिटी कि भाई क्या क्या कौन कौन सी कंट्री सिमिलर है जो हमारे जैसा प्रोडक्ट को यूज करेगी, हमारे प्रोडक्ट को डिमांड करेगी, बल्कि वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगी कैटर करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट को। सो इन पॉलीसेंट्रिक वी कैन से, पॉलीसेंट्रिक में लिख सकते हैं आप लोग, अगर दो दो लाइन जो मैं बता रही हूँ लिख लिया कीजिए। पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन या पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, in polycentric approach the companies see each country unique and exclusive. The company sees each country unique and exclusive, and consider that the business are best run locally in the international market. पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन में जो कंपनीज है दूसरे कंट्री के, जैसे मान लो कि इंडिया की कोई कंपनी एबीसी, अब वो जो कंपनी है वो ये मानेगी कि भाई अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में डील करना है तो वहां के लोकल नीड्स को समझना जरूरी है। तो ऐसे केस में जो हेडक्वार्टर्स है ना, उनका कंट्रोल नहीं रहता सब्सिडियरी पे। सब्सिडियरी के पास फुल राइट होता है कि अगर आप चाहें तो आप प्रोडक्ट में चेंजेस ला करके भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। So like in the polycentric orientation, there is the host country approach is there. Like company is basically focuses on the what is the basic demand and they are going to fulfill it by providing the different product, and अगर product में changes ला करके वो provide करेंगे। तो that is a polycentric orientation. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए रीजनोसेंट्रिक या रिजियोसेंट्रिक। अब रिजियोसेंट्रिक अप्रोच जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट है पॉलीसेंट्रिक एंड एथनोसेंट्रिक से। रिजियोसेंट्रिक में इस अप्रोच में पर्टिकुलरली एक कंपनी जो है, मान लीजिए, देखिए मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। मान लीजिए कि यूएसए जो है वो क्या करेगा, अगर उसको प्रोडक्ट सेल करना है तो वो एक चीज चेक करेगा कि हम कौन से रीजन में सेम टाइप का प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, कौन सा रीजन में। तो वो नोटिस करेगा कि अगर मैं इंडिया में सेल कर रहा हूँ तो एक काम कर सकता हूँ कि इंडिया के अलावा जो आसपास श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब में भी मैं सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट क्या करूंगा, सेल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ लगभग सारे कंट्रीज जो है वो नेबर कंट्रीज है और हो सकता है इनका डिमांड भी प्रोडक्ट का एक जैसा ही हो लगभग।
तो यहाँ पर जो यूएसए का अप्रोच होगा वो क्या अप्रोच होगा कि रीजन में, मतलब एक रीजनल एरियाज में मुझे एक टाइप का प्रोडक्ट क्या है वो सेल करना है, या कह सकते हैं सेम प्रोडक्ट सेल करना है। वहां पर क्या था, होम कंट्री अप्रोच जो था आपका इथनोसेंट्रिक में, कि कहीं पर भी सेल करो, वहां के लिए कोई प्रोडक्ट हमें बनाने की जरूरत नहीं है, जो हमारे होम कंट्री में बन रहा है सेम वही प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल कर देंगे, खत्म। पॉलीसेंट्रिक में क्या था कि यहाँ पर हम हर एक मार्केट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, पर रीजनोसेंट्रिक में क्या होगा कि एक ही टाइप का जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक रीजन में क्या होगा उसको सेल किया जाएगा, इसको कहते हैं रीजनोसेंट्रिक। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, ये क्या है, सारे आपस में एक रीजन में आते हैं, ठीक है। साउदर्न रीजन में लगभग ये सारे के सारे एरिया साउदर्न एशिया में आते हैं, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं, और लगभग सारे आसपास है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कल्चर भी मैच हल्का फुल्का करता है। तो इसी केस में जो प्रोडक्ट को, एक ही प्रोडक्ट को इन पूरे रीजन में हम सेम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आया? Yes, ma'am. लवली, रीजनोसेंट्रिक क्लियर हो गया बच्चे? Yes, ma'am. The company that follows the regionocentric या regiocentric या regiocentrism, the company that follows the regiocentric, the company that follow the regiocentric approach, the companies that follows the regiocentric approach of the framework studies, the companies that follows the regiocentric approach of the framework studies the similarities and differences in the world, its various similarities and differences in the world, the company that follows the regiocentric approach of the framework studies, the similarities and differences in the world, the similarities and differences in the world, and its various operating regions, and its various operating regions, and its various operating regions, and design the strategies accordingly, and designs the strategy accordingly, design the strategies accordingly। यानी कि रीजियोसेंट्रिक में एक कंपनी जो है, मान लो यूएसए वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो कुछ चीजों को सिमिलर देखेगी एक रीजन में, कौन कौन सी चीजों को, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, अगर उनको सारे कंट्रीज में एक जैसी सिमिलैरिटीज दिखेगी तो वो क्या करेगा कि वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना करके उस पूरे रीजन में क्या करेगा, सेल करेगा, ठीक है। यानी कि उनको ये पता लगेगा कि ये सारे एरियाज में जो पोटेंशियल कंज्यूमर है वो लगभग सबके नीड्स और डिमांड सिमिलर है, मतलब वो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड विद दीज सिमिलैरिटीज ऑफ इकोनॉमी, फिर पॉलिटिकल, कल्चरल, दैट in all these reasons all the consumers have same needs and demand। तो ऐसे केस में एक ही तरीके का प्रोडक्ट बना के एक रीजन में सेल करेगा, तो इसको कहते हैं रीजियोसेंट्रिक अप्रोच, रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। नेक्स्ट लिखिए जियोसेंट्रिक अप्रोच, जियोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। जियोसेंट्रिक अप्रोच का मतलब क्या है कि यहाँ पर वो सिर्फ कुछ कंट्रीज के साथ डील नहीं करेगा, यहाँ पर ये बेसिकली एक बेस्ट बोल सकते हैं ग्लोबल एग्जांपल है कि यहाँ पर जियोसेंट्रिक में हम सारे के सारे जो भी कंपनीज होंगे वो किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में अगर एंटर करेंगे तो वो क्या करेंगे, बेसिकली अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, कैटर करेंगे इनको। तो यहाँ पर लिखिए, 2 लाइन इस पे लिख लीजिए, the companies following the geocentric approach, the companies following the geocentric approach following the geocentric approach of the EPRG framework are truly the global player as they display
the act and strategy of think global, act global, think global, act global, think global, act global, think global, act, ठीक है? They act, they view the entire market, they view the entire market, they view the entire market, या entire world as their potential market, as their potential market. They view the entire world as their potential market and take effective and efficient steps. They take efficient and effective and efficient steps to understand the needs and demands of the customer. Effective. Needs and demand of the customers. They view the entire as their potential market and take effective and efficient steps, to understand the needs and demand of the customers, ठीक है? यानी कि ये जो आपके जियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन होगा, यहाँ पर एक कोई भी कंपनी जो होगी वो सिर्फ एक या दो मार्केट में डील करने के लिए नहीं सोचेगी. दे विल थिंक दैट द होल मार्केट या होल वर्ल्ड जो है वो उनके लिए कौन सा मार्केट है? पोटेंशियल मार्केट है. दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन एनी पार्ट ऑफ एनी कंट्री. ठीक है, किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में दे कैन इजिली सेल द प्रोडक्ट. So they are thinking that whole market is their potential market. They can do little bit things कि या तो वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी, जो डोमेस्टिक जो भी उनके बेसिकली डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जिसके साथ वो डील कर रहे हैं, या तो वो उसको भी सेल कर सकते हैं जैसा एज इट इज, या तो कुछ चेंजेस ला करके भी जैसा डिमांड होगा वैसा वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे. लेकिन they are not thinking about 2 or 3 countries or 1 or 2 countries, but they are basically thinking about the whole world in that way. So इन चारों ओरिएंटेशन क्लियर हो गए. ये चारों ओरिएंटेशन, इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ. तो एग्जांपल में इसमें कुछ है कि जो रीजियो सेंट्रिक में आप लिख सकते हो मैकडोनल्ड, मैकडी ले सकते हो कि लाइक यहाँ पर जो यहाँ पर मैकडी जो है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रीजियो सेंट्रिक. और जियो सेंट्रिक में आप ले सकते हो MTV वगैरह जो है, ठीक है, ये सब आ जाएगा. तो यहाँ पर इस चारों टाइप का जो मैंने EPRG फ्रेमवर्क बताया है, सबको क्लियर हो गया EPRG फ्रेमवर्क? मैम इथनोसेंट्रिक में जो भी होगा वो सेम प्रोडक्ट से ही डील करेगा फॉरेन मार्केट में भी, जो भी होम कंट्री में बना रहा है वो. और पॉलीसेंट्रिक में होगा कि वो जिस कंट्री में वो डील करने जा रहा है उस कंट्री के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएगा. उसमें होम कंट्री का कोई चेंजेस वगैरह के लिए होम कंट्री से कोई ये नहीं होगा. और रीजन सेंट्रिक में होगा कि सेम रीजन में भी उस प्रोडक्ट का सेल होगा. रीजियो सेंट्रिक में क्या होगा? रीजियो सेंट्रिक में मैम जो आस पास में जितने भी 2 4 5 रीजन होंगे उसमें वही प्रोडक्ट सेल होगा जो वो बना रहे हैं. और जियो सेंट्रिक में मैम, रीजियो सेंट्रिक में क्या होगा कि जहां पर आप डील कर रहे हो, जैसे अगर आप इंडिया में डील कर रहे हैं और आसपास के पूरे रीजन में डील करेंगे, तो ऐसे केस में आप सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो पूरे रीजन में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सिमिलर वहां का क्या होगा? कल्चर होगा, इकोनॉमी है लगभग सिमिलर. तो ऐसे केस में वहां के कस्टमर का नीड्स और डिमांड भी लगभग सेम ही टाइप का होगा. तो दे आर इजिली अंडरस्टैंड दैट द पीपल आर गोइंग टू डिमांड द सेम थिंग इन दैट पर्टिकुलर रीजन. तो ऐसे केस में वो सब पूरे एरिया में क्या करेगा? सेम प्रोडक्ट बेसिकली बना के अलग बनाएगा, लेकिन अलग बना करके जो एक कंट्री के लिए बना रहा है वही सारे दूसरे रीजनल एरियाज में भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा. यस मैम. और जियो सेंट्रिक में होल वर्ल्ड को वो पोटेंशियल मार्केट समझकर प्रोडक्ट बनाएगा और उसको सेल करेगा.
So today we are going to understand the next topic, that is the triad market. Triad, the TRIAD, triad market. Triad market. Triad market. ट्रायड मार्केट एक्चुअल में क्या है? तो ट्रायड मार्केट जो है, मार्केट रेफर करता है तीन चीजों को, यूएसए, यूएस एंड कनाडा एक साथ है, यूएसए एंड कनाडा विल बी इन द सेम ग्रुप. नेक्स्ट इज यूएसए एंड कनाडा. नेक्स्ट इज जापान एंड वेस्टर्न यूरोप. The triad market refers to the USA and Canada, US and Canada, जापान एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. यानी कि यहाँ पर तीन चीजों से ट्रायड मार्केट बना है. एक है आपका यूएसए, एक है जापान और एक है यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली देखना है कि ट्रायड मार्केट आफ्टर ऑल क्या होता है, ट्रायड बिजनेस क्या है. तो जो नया ग्लोबल मार्केट है वो क्या करता है, एक्सेलरेट कर रहा है कंपटीशन को. अब कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पर कंपनीज के पास लगभग basically thereby reducing the lead time for the companies with new product. यानी कि नए कंपनीज को इतना टाइम नहीं मिल रहा प्रोडक्ट बनाने के लिए, सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज के लिए. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपका ग्लोबल मार्केट है वो क्या कर रहा है, कंपटीशन को इंक्रीज कर रहा है. क्योंकि आप देखिए जितना भी फॉरेन मार्केट है, फॉरेन कंपनीज है, वो लगभग सारे दूसरे कंट्रीज में डील करती हैं. ऐसे केस में कि दूसरे कंपनीज को इतना एक्सेसिव टाइम नहीं मिलता है कि वो मार्केट टेक्नोलॉजीज में चेंज ले आए, न्यू प्रोडक्ट में चेंज ले आए, सर्विसेज में चेंज ले आए टारगेट मार्केट के हिसाब से. तो ऐसे केस में अगर आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो बिजनेस होना चाहिए वो एक स्ट्रैटेजिक मार्केट के हिसाब से होना चाहिए, जहां पर आप बेसिकली सेल भी कर सके प्रोडक्ट को और कॉम्पिटिटिव भी रहे. यानी कि in this scenario, when you have not enough time to change in the product and services according to the target market, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में आपको स्ट्रैटेजिक कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा, वे ढूंढना पड़ेगा मार्केट को एक्सपैंड करने और सेल करने के लिए. ठीक है, चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल हो कोई बिजनेस, ठीक है, सब जो है वो नीश मार्केट की तरफ मूव ऑन कर रहा है. नीश मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप सिर्फ एक छोटे से ग्रुप पे फोकस करेंगे. मान लीजिए कि कोको कोला है. कोको कोला क्या करता है ना, वो तो ऐसे ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट में डील करता है. पर अगर हम एक इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये पूरा का पूरा पूरे के पूरे एरियाज में मिल जाएगा, चाहे वो विलेज हो, रूरल एरियाज हो, अर्बन हो, टाउन हो, हर जगह मिल जाएगा. बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत बहुत स्पेसिफिकली बनते हैं कुछ एरिया को कवर करने के लिए. जैसे कि आपका टाइटन का फास्ट ट्रैक है, वो एक नीश मार्केट का एग्जांपल है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यूथ को कवर करने के लिए बनाया गया. क्या है वो, बेसिकली वॉच है. तो नीश मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप कोई नए छोटा मोटा चेंज कीजिए टेक्नोलॉजी में, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव लाइए और आप कुछ ही कंज्यूमर पे फोकस कीजिए कि प्रोडक्ट वो कुछ ही लोग खरीदे. जैसे मैंने क्या बताया, फास्ट ट्रैक जो है वो यूथ के लिए वॉच है, तो ज्यादातर जो टीनेजर्स हैं they are purchasing that particular product. तो उनके जो टारगेट कंज्यूमर कौन होंगे, यूथ होंगे, टीनेजर्स होंगे. तो इसको कहते हैं नीश मार्केटिंग अप्रोच, जहां हम एक स्पेसिफिक लोगों को, स्पेसिफिक मार्केट को, स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करते हैं. तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि बिजनेस या तो बड़ा हो या फिर बिजनेस छोटा हो. ठीक है, अगर वर्ल्ड वाइड आपको इकोनॉमी, अगर आपको वर्ल्ड वाइड अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है, ठीक है, और आपको कंपटीशन मतलब कॉम्पिटिटिव भी रहिए और साथ साथ जो है आप एक एक्सट्रीम कंपटीशन में फंसे भी ना. यानी कि आप मार्केट में चले भी और बेसिकली एक्सट्रीम कंपटीशन की वजह से आप मार्केट में फेल ना हो जाए. इन दोनों चीजों को देखते हुए आप नीश मार्केटिंग अप्रोच को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जहां पर बस आपको क्या करने की जरूरत है, अपने प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंज लाइए और कुछ ही कंज्यूमर पे फोकस कीजिए. ये एक स्ट्रैटेजी हो सकता है अगर आप मार्केट में रहकर अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं. नीश मार्केटिंग में क्या होता है ना कि कॉम्पिटिटर जो होते हैं ना कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं. ठीक है, अगर आप दूसरे मार्केट्स को देखें, दूसरे प्रोडक्ट्स को देखें, जैसे वॉच में आप और भी बाकी चीज देख लीजिए,
ठीक है, सोनाटा, टाइटन, फिर आपका मैक्सिमा, इस तरीके के जो वॉचेस होते हैं। खैर अभी तो सारे लोग थोड़े बहुत वॉच में चेंज लेकर आए हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक का जो एक अलग इमेज बना है वो सारे बाकी ब्रांड्स का नहीं है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि वो उन्होंने निश मार्केटिंग अप्रोच को अडॉप्ट किया। तो निश मार्केटिंग अप्रोच के का एक अच्छा तरीका कह सकते हैं, यहाँ जो ट्रायड मार्केट है, लगभग यूएसए, आपका यूरोप और जापान, ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, लगभग ये 14% है टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन के। लगभग जितना पॉपुलेशन और ओवर वर्ल्ड है उसमें 14% सिर्फ पॉपुलेशन है। मतलब पॉपुलेशन, और अगर हम पीपल के हिसाब से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 14% ग्लोबल पॉपुलेशन है। लेकिन 70% जो है ये वर्ल्ड का ग्रॉस प्रोडक्ट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स का। यानी कि 14% जो पॉपुलेशन है अपने पॉपुलेशन से 5 गुना ज्यादा वो एब्जॉर्ब करता है कंज्यूमर गुड्स एंड ऑल। यानी वर्ल्ड में जितनी चीजें बनती हैं उसका लगभग 70% ये 3 कंट्री कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये लोग मेजर प्रोपोर्शन है इनका कंज्यूमर प्रोडक्ट और कैपिटल अब्सॉर्ब करने का। और लगभग 1980 से अगर हम बात करें तो ये जो 3 मेजर इंटरनेशनल ट्रेडिंग एरियाज है, लगभग 1980 से अगर हम देखें तो ये जो 3 मार्केट है, यानी कि यूरोप का मार्केट, आपका जापान और साथ साथ आपका यूएसए, ये तीनों जो मार्केट है ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेडिंग एरियाज में ये हमेशा से बहुत आगे रहा है। मतलब कि दीज आर द मेजर प्लेयर इन द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, और इनका जो, इसीलिए इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड इकोनॉमी को एक ट्रायड को फॉर्म में बना दिया। ट्रायड यानी 3, ट्रायड के फॉर्म में बना दिया है। ठीक है, और इनका एम क्या है कि मार्केट में यूनिफॉर्मिटी लेकर आना, करेंसी पैरिटी डिफरेंसेस को कम करना। यानी करेंसी की जो प्रॉब्लम्स आती है इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह, इनको कम कीजिए। ठीक है, और साथ साथ में क्या कर सकते हैं, ये एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये जो, यही एक अपीलिंग कैरेक्टरिस्टिक है ट्रायड मार्केट का, बिकॉज दीज 3 आर बेसिकली द मेजर प्लेयर इन द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो ये जो, यही जो तीनों मार्केट हैं, यही कहीं ना कहीं स्ट्राइक करते हैं कुछ सिमिलैरिटीज ऑफ द डिमांड, लाइफस्टाइल वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ट्रायड मार्केट का मतलब यही है। अब इसको फिर से एक बार शॉर्टकट में समझ लीजिए कि ट्रायड मार्केट क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ट्रायड मार्केट है ये 3 मार्केट को रेफर किया जा रहा है, जापान को, यूएसए को और यूरोप को। ठीक है, ये जो तीनों मार्केट है इसमें पॉपुलेशन सिर्फ 14% है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का। लेकिन इनका जो अब्जॉर्प्शन है प्रोडक्ट का, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स में आपके इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह आ जाएंगे, मशीन सब वगैरह सब आ जाएंगे, ये लगभग 70% इस चीज को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है कि ये डोमिनेटिंग पोजीशन में है ये ट्रायड मार्केट। तो इनका जो मेन एम क्या है, ये एक्चुअल में एक तरीके से मोनोपोली बना रखा है, इनका एक मोनोपोली बन चुका है कि अब ये जो डिसीजन लेंगे दैट इज गोइंग टू इफेक्ट द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। तो यहाँ पर ये जो तीनों कंट्रीज हैं ये क्या करती हैं, लाइफस्टाइल वगैरह को चेंज करना, डिमांड की सिमिलैरिटी मेंटेन करना, अगर कोई करेंसी में चेंजेस, करेंसी की पैरिटी को फिर बेसिकली मैनेज करना, ये तीनों कंट्री बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर जो ट्रायड मार्केट है वो बेसिकली ऐसे केस में यही आपको क्या बताता है कि वी हैव टू डील इन द नीश मार्केटिंग अप्रोच बिकॉज टू रिड्यूस द कंपटीशन। तो ट्रायड मार्केट अप्रोच यही है जहां पर 3 मार्केट के हिसाब से मार्केटिंग सिनेरियो या मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा पॉइंट आ रहा है, दैट इज ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन। So before understanding the global market segmentation, we just need to think about what is the meaning of market segmentation. Market segmentation का मतलब क्या होता है? Basically, market segmentation is the process of dividing the whole market. पूरे मार्केट को डिवाइड करना है, क्योंकि एक पूरे मार्केट में अलग अलग कल्चर, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग लोग होते हैं, उनकी नीड्स अलग होते हैं। तो उन पूरे मार्केट को हम डिवाइड कर लेंगे सिमिलर ग्रुप्स में। यानी कि एक एरिया में, अरे इस एरिया में तो इसका डिमांड है, तो एक एरिया को हम एक ग्रुप में रख लेंगे, एक एरिया को हम एक ग्रुप में रख लेंगे। तो जो हेट्रोजीनियस मार्केट है, यानी कि जो ऐसा मार्केट जहां पर लोगों का डिमांड अलग अलग है,
उस डिमांड को हम एक सिमिलर क्या करेंगे, एक सिमिलर एरियाज में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, डिवीजन करना, यानी कि डिवाइड करना, बांटना किसको, पूरे मार्केट को, पूरे ग्लोबल मार्केट को अकॉर्डिंग टू द सिमिलर डिमांड। यानी कि मान लो कि जैसे अगर हम इंडिया देख ले तो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कंज्यूमर्स हैं। लाइक बिहार को हमने सिर्फ एक रीजन के हिसाब से बांट लिया तो बिहार में हम एक टाइप का प्रोडक्ट बना के भेजेंगे, महाराष्ट्र में जिस तरीके का प्रोडक्ट का डिमांड है उस तरीके से भेजेंगे। अगर हम सिर्फ स्वीट्स का भी एग्जांपल ले लेना तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्वीट्स जो है फेमस है, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग जो कंपनीज है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के भेजती हैं एक एक अलग अलग एरियाज में, ठीक है, जहां पर सिमिलर नीड होगा। अगर वो या तो वो इसमें अब जो डिवीजन होगा ना वो बहुत 4 बेसिस पे होगा। एक तो एरियाज के हिसाब से, यानी कि ज्योग्राफिकल एरियाज के हिसाब से, या तो स्टेट के हिसाब से हमने बांट दिया चीजों को, या फिर हमने कंट्री के हिसाब से बांट दिया, तो ये होता है जियोग्राफिक। हमने या तो डेमोग्राफिक देखा। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है कि हमने जो कंज्यूमर्स को बांटा है या तो हमने जेंडर के हिसाब से बांट दिया, या तो हमने एज के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से, इनकम के हिसाब से हमने एरियाज को क्या किया, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट आपका होता है एक साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक में आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो लाइफस्टाइल है कंज्यूमर का, उस हिसाब से हमने पूरा एरिया मतलब पूरा प्रोडक्ट को हमने डिवाइड किया। नेक्स्ट होता है बिहेवियरल। यहाँ पर हमने मार्केट को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी एंड लाइफस्टाइल इन द साइकोग्राफिक। इन द बिहेवियरल कि लोगों का परचेजिंग का पैटर्न क्या है, लोग ओकेजनली खरीदते हैं, कौन कस्टमर्स लॉयल कस्टमर्स हैं, इसको देखते हुए जब हम बेसिकली मार्केट को बांटते हैं तो इसको हम कहते हैं बिहेवियरल। तो इसको मार्केट सेगमेंटेशन को हम एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे और इसको फिर से EPRG फ्रेमवर्क बताया, ये सबको क्लियर हो गया। EPRG फ्रेमवर्क, ट्रायड मार्केट क्लियर हो गया, और स्वॉट एनालिसिस